So we'll start geometry, and within geometry, let's first start lines and angles. So इसमें जो कैपिटल लेटर्स में है वो मेन टॉपिक्स है, पॉइंट एंड लाइन, एंगल्स एंड रिलेटेड एंगल्स. सो दीज टू आप लोगों को तो मालूम ही है, व्हाट अ पॉइंट इज, व्हाट अ लाइन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल. So let us start with related angle, 8.3. And within 8.3, then we will see 8.31, 32, 33, 34, 35. Then we'll do 8.4. So quick revision. What do you mean by point? What do we mean by line? What do we mean by line segment and ray? ठीक है. Point क्या हो गया? Point basically shows the location. It is just a location. Suppose I draw this point. And I draw another point. So this is one location. This is another location. And इस point का we say, इसका कोई dimension नहीं है. जैसे line का there is one dimension, which is the length from here and to here. So this is would be a line. Now, when we join two points, जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वी फॉर्म है, कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं वी फॉर्म है लाइन. लेकिन लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है कि जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, व्हेन वी ज्वाइन देम, अगर तो इफ देयर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट ए इज ए स्टार्टिंग पॉइंट and point B is the end point. तो इसको हम क्या बोलेंगे? We will call it line segment. So that means line segment has a starting point and it has an end point. Whereas if we don't show line starting point and end point, then it becomes a line. That means अगर ये point A है, suppose this is point A and this is point B, and I join these 2 points, but I don't stop it. I keep on extending in both the directions. तो ये arrow क्या दिखा रहे हैं? It is not ending. It keeps on moving forward. Does not end. It does not end. So इसको हम बोलेंगे line. So this is called a line. So there's a difference between line and line segment. और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे लाइन सेगमेंट दिखाना है. So we will write 2 points A and B, and above these 2 points we'll draw a line. अगर अब ये जो लाइन है, इसको मैं लिखूंगा लाइन को AB, and then above it I will show with 2 arrows. Okay? So this is how we show line segment, and this is how we show a line. And what is a ray? Ray has a starting point, but it does not have an end point.
ओके, सो रे क्या होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. सो if we join the 2 points, it becomes a line segment. But if I continue in this direction, that means इसका starting point तो है, starting point is there, starting point is A, but B जो है, it is not an end point because ये यहाँ से ये line जो है B की direction में आगे, it continues, it keeps on moving. So this is called a ray. And how do we denote, how do we write a ray? We will write AB, and above it we will show only arrow in one direction. So this is difference between line segment and a ray. ओके, ये तो पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? हु विल टेल मी? अगर आपको कोई बोलेगा एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय इट? एंगल क्या होता है? शाबाश, हु विल ट्राई? बताओ बताओ जल्दी से. शाबाश, who will tell me an angle? कोई बोल ही नहीं रहे. सर जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं उसे एंगल कहते हैं और वो वर्टेक्स पे आके मीट करती हैं. हाँ, लेकिन एंगल किसको बोलते हैं? शाबाश, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती है तो वो एंगल क्रिएट करते हैं. दैट इज ट्रू. एक मिनट में आपको चीज दिखाना चाहता हूं. चलो इसको कॉपी करते हैं. So you are saying when we join two points, sorry, two lines. So this is one line or line segment, and this is another line. So line को हम कैसे लिखते हैं? हम दो पॉइंट्स के नाम लिखते हैं. ये ध्यान रखना है कि जब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो ऊपर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, पॉइंट पे हम लिखेंगे. पॉइंट इज ऑलवेज शोन इन कैपिटल लेटर, ये याद रखना. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट जो है, इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर. या जैसे आप ABC लिखोगे तो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा व्हेन यू हैव टू राइट ए पॉइंट. और जब हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे या लाइन लिखेंगे तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं. या तो हम लिख सकते हैं जैसे ये लाइन जो है, ये वाली यहां से यहां तक, या लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है. सो वी विल राइट इट एज AB. तो हम इसको लिख सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं एज AB. वो अलग बात है कि ऊपर हमें एक्चुअली में ऐसे भी लिखना चाहिए, बट जब हम काफी एक्सरसाइजेस करते हैं ज्योमेट्री में बार बार, हम ये नॉर्मली हम सिंपली AB लिख लेते हैं. लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं. इसका मैं इस लाइन का, आई कैन राइट ए नेम फॉर दिस लाइन. इफ आई राइट ए नेम फॉर दिस लाइन AB as say for example M, then I have to write in a small letter. So either I write in capital letter
कैपिटल लेटर में लिखूंगा तो पॉइंट ए बी लिखूंगा, या मैं अगर स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो दैट मीन्स इस लाइन का नाम है एम. सो आई कैन राइट AB shows the 2 points, and or I can write line M. अगर नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर पॉइंट्स दिखाने हैं आपने तो कैपिटल लेटर में लिखना है, इसका ध्यान रखना है. ओके. अब इसमें एंगल कौन सा है बीच में? आई हैव 2 लाइन्स AB एंड BC. तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल जो ये जो है, ये एंगल, ये तो ठीक बोला आपने कि व्हेन 2 लाइंस मीट एट अ पॉइंट, सो दे आर मीटिंग एट पॉइंट बी, और जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. सो दे फॉर्म एन एंगल. बट बेसिकली एंगल होता क्या है ये आपको इससे पता चलेगा. लेट मी शो यू दिस. नाउ इफ यू वॉच केयरफुली, देयर आर 2 लाइंस और लाइन सेगमेंट्स. एक ये लाइन है, लाइन ए. अगर हम यहां देखें, एक रे है, बिकॉज इट्स ए स्टार्टिंग पॉइंट ए और यहां पे एरो दिया है, सो वी कैन से दिस AG इज ए रे. और दूसरा रे है AF. एंगल किसको कहेंगे हम? कंसेप्ट ऑफ एंगल क्या बोलता है कि जब हम इस एक लाइन को, इफ वी रोटेट इट अराउंड अनदर लाइन, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो ये कितना रोटेट हुआ उसको एंगल कहते हैं. ठीक है. सो एंगल basically shows the rotation of one line around another line. ये समझना है. एंगल कोई ऐसा नहीं है कि अगर सपोज इफ आई ड्रॉ ये एक लाइन एंड आई ड्रॉ अनदर, अब ये दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, विच इज बिगर एंगल? एंगल ये इसका एरिया नहीं है. दिस इज नॉट द एरिया विच इज एनक्लोज्ड. दिस इज नॉट एंगल. एंगल इज ओनली द रोटेशन. तो अगर हम देखें यहां पे ये इतना रोटेट किया है, यहां भी इतना रोटेट किया है, तो ये रोटेशन सेम है. सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज रोटेशन इज सेम. So how will we write angle? We can write angle. एंगल को कैसे हम लिखेंगे? एंगल is the measure of rotation of one line around another line. कि एक लाइन दूसरे लाइन के कितना रोटेट कर रही है, उसके कितना रोटेट किया उसने, उस रोटेशन का मेजर है. इट इज मेजर ऑफ रोटेशन. ठीक है. एंड उसका यूनिट क्या है? यूनिट इज डिग्री. ये तो हो गया एंगल के बारे में. दिस वाज जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट line segment, ray and angle. Now let us do quickly some exercises. So let's go back to Google Classroom. So we will do 8.3, which is related angle. Related angle मतलब
दो एंगल्स जिनका आपस में कुछ रिलेशन है. सो क्या क्या रिलेशन हो सकता है? दे कैन बी कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. दे कैन बी वर्टिकल एंगल्स. दे कैन when these angles can be created by intersecting lines or by parallel lines. तो हम ये जल्दी से देखते हैं. सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री तो आप लोगों को मालूम है. Ira, you know Yes, what sir. is? Yes, Ira, you know these complementary and supplementary angles? Yes, sir. So ये तो इजी है. जो एंगल्स 90 डिग्री बनाए, this is 90 degree, so angle 1 and 2 will be called complementary. और जो एंगल्स 180 डिग्री बनाए, जिनका सम 180 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री. ये तो आप लोगों को मालूम है. तो इसकी कुछ आप एक्सरसाइजेस भी इसके 3.1 में कर सकते हो, ये वाली. देन वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं? जो when two lines intersect each other, they are intersecting. This is point of intersection. और वर्टिकल कौन सी होंगी? जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी. एंगल 1 एंड एंगल 2, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 3 एंड एंगल 4, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये भी आपको मालूम है. कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकल, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस. मेन चीज इसमें हमारे में ध्यान देना है अबाउट relationship, angle relationship when we have parallel lines. ठीक है. So 8.34 को आप we will touch base. We will see different things. First is corresponding angles. Let me show you this. What do you mean by corresponding angles? लिखो कॉपी में. Corresponding angles. If you have two parallel lines, now these are two parallel lines, AB. Sorry, AB को या AD को, क्योंकि यहाँ point D है. This is point A, so we will call this AD, and this is your FH. So these are two parallel lines. Parallel lines कौन सी होती हैं? जो आपस में मिलती नहीं हैं. दो lines which do not intersect when extended. अगर आप इसको आगे चलते जाओ, आगे चलाते जाओ, इसको भी आगे चलाते एक्सटेंड करते जाओ, they will never meet. That means उनका जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा. So these are two parallel line, और जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, so it is intersecting at 2 points, point B and point C. इस लाइन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. So I have two lines and a transversal. तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं? फर्स्ट लेट अस सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि जिनका उन एंगल का पोजीशन सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल देखिए हम, और ये वाला एंगल देखिए. इसका सिमिलर क्यों है? क्योंकि अगर मैं सपोज आई कॉल दिस एंगल एज 1 and this angle as 2, what is the similarity? That angle 1 is on top of this line and on the left side of this transversal. Similarly, angle 2 भी जो है वो इसके, it is sitting on the top and on the left side of the transversal. So इनकी position सिमिलर है, तो इनको हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
अब इसमें कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये 117 डिग्री है, ये भी 117। फिर ये एंगल इसके नीचे है, इट इज बिलो द पैरेलल लाइन एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस इज 63, ये भी 63 है। सो दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसमें देखो प्रॉपर्टी कितनी अच्छी तरीके से दिखाई है, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव। दिस इंटरैक्टिव मीन्स, इंटरैक्टिव कौन सा कंटेंट होता है जो आप उसके साथ यू कैन चेंज द कंटेंट। एक्सरसाइज तो फिक्स्ड कंटेंट होता है, इस कंटेंट को यू कैन मूव इट अराउंड, यू कैन प्ले विद इट। सो ये काफी इंटरैक्टिव कंटेंट जो है वो जियोजेब्रा में, तो जियोजेब्रा को आप यूज कर सकते हो, geogebra.org। Now let us see, let us move these lines। देखो अगर इन लाइंस को मैं मूव करता हूं, ध्यान से देखना, देखो इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूं। अब मैं इस इन टू लाइंस को आई कैन चेंज द एंगल्स, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम रहते हैं। सपोज इनको मैंने ऐसे ही कर लिया, अभी देखो यहाँ 49.3 है, ये भी 49.3 है। एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम रहेंगे। लाइंस को बेशक मैं ऐसे करूं या इसको मैं एक दूसरे से दूर करूं या नजदीक करूं या चेंज करूं, जैसे मर्जी डायरेक्शन में चलाऊं। So that is why it is called interactive, because I can change the content. It is interacting with me. I can interact with the content जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूं। अब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, लाइंस को नजदीक ला रहा हूं, दूर ले रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मेन प्रॉपर्टी है। बेशक मैंने इनको एक दूसरे के नजदीक लाया या इसको चेंज कर दिया, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो दो लाइंस हैं दे रिमेन पैरेलल। दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। सो ये कंटेंट को यू कैन प्ले विद इट एंड यू कैन ऑब्जर्व कि जो भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, फिर राइट साइड में ऊपर वाला और राइट साइड में ऊपर वाला, राइट साइड में नीचे वाला और राइट साइड में नीचे वाला। यू सी दे ऑलवेज रिमेन सेम, इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से when two parallel lines, if you draw two parallel lines and a transversal, the corresponding angles are equal. Angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. So you can say corresponding angles are equal. तो ये एक प्रॉपर्टी है रिलेटेड एंगल्स की। तो इसमें हमने क्या देखा? पहला वाला 8.34 में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, दीज आर ऑल, ये जो मैंने लिंक्स डाले हैं 4 लिंक्स, दीज आर ऑल इंटरैक्टिव, जियोजेब्रा के, इनको आप यू कैन प्ले विद इट, से और कंसेप्ट क्लियर होएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, और वर्टिकल एंगल्स क्या होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो क्लिक करते हैं। अब आप देखो इसमें दिख रहा है देयर आर टू पैरेलल लाइंस
and this is a transversal. So alternate interior, यानी कि इंटीरियर मींस जो इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर है. अंदर मतलब जैसे ये अंदर है, ये भी इसके अंदर है. इंटीरियर है, इनसाइड, नॉट एक्सटीरियर. सो ये दिस इज इंटीरियर, this whole area is interior, whereas this is exterior. This is exterior. So interior है और alternate है. अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में, अगर ये राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड में. ठीक है, दे आर ऑल्सो इक्वल. अभी देखो, अभी आपको एक पेयर दिख रहा है. अगर आप, अगेन दिस इज इंटरैक्टिव, आप इसको क्लिक करोगे तो यू विल सी द अदर पेयर. और इसको भी आप देखो, इफ यू चेंज द ट्रांसवर्सल लाइन और या पैरेलल लाइन, एंगल सेम रहेंगे. देखो मैं ट्रांसवर्सल को चेंज कर रहा हूं, एंगल विल ऑलवेज रिमेन द सेम. जैसे मर्जी आप चेंज करो, ये जो एंगल है वो सेम रहेगा. ठीक है. थर्ड इज को इंटीरियर. को इंटीरियर मीन्स इंटीरियर है लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और जो यहां पे एंगल दिखाए हुए हैं दे आर को इंटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन द same side of transversal. So they are called co-interior. इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो सम है, सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इनकी प्रॉपर्टी. अभी देखो मैं एंगल को अगर चेंज भी, सॉरी लाइंस को अगर चेंज करता हूं, अभी देखो यहाँ इनको मैं चेंज करता हूं, एंगल चेंज हो रहा है बट उनका सम सेम है. अभी क्या है? 118.3, 61.7. इनको आप ऐड करो, इट विल बी 180. अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब 128 हो गया तो ये 51.8 हो गया. इनको ऐड करो, अगेन दे रिमेन 180. तो आप इसको जैसे मर्जी चेंज करो, the sum will always remain 180 degree. ओके. अब जैसे ये है, these are co-exterior. इनको ध्यान से देखो, co-exterior. एक्सटीरियर क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर है. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बाहर है, एक्सटर्नल एरिया में बाहर है. इनका भी सम जो है 180 होगा. सो अगर इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा, उनका सम विल ऑलवेज बी 180 डिग्री. ओके. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. तो हमने क्या क्या देखा, और फिर हमने वर्टिकल एंगल्स. वर्टिकल एंगल्स तो मालूम ही आपको, दे आर ऑलवेज इक्वल. जब when two lines intersect, vertical angles are equal. तो इसका इंटरैक्टिव भी आप इस पे देख सकते हो. सो इसको आप खुद, you can play with these interactives to have a feel, to get an idea about corresponding angle, alternate interior, co-interior, and vertical angles. Corresponding, alternate and vertical, they are equal. लेकिन सिर्फ co-interior में उनका sum is equal to 180 degree. Is it clear? जब ये आपके क्लियर हो जाएगा, then you should do this exercise. Let's do this.
couple of questions about parallel lines and related angles. अब क्या कह रहे हैं? below are two parallel lines with a third line intersecting them. आपको x find करना है. What will be x? शाबाश. What will be x? X will be equal to, and साथ में आपको रीजन भी देना है. Why do you think? जो भी आपने इसकी वैल्यू निकाली, ये इस कौन बताएगा? तनुजा बताओ क्या होगा x? सर 44. 44. Why? X. आपको क्यों लगा 44 होगा? बताओ बताओ. सर 124 होगा. क्या होगा? हाँ बताओ सोनिया. सर 50 डिग्री. सर सॉरी 56. 56. 56. यस सर. Why? सर ये इस x के अपोजिट वाला जो एंगल है 56 का, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये x इसका अपोजिट एंगल है. वर्टिकल. वर्टिकल सो आपको जब ज्योमेट्री में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आपको ड्रॉ करना चाहिए, देन यू शुड राइट, ऐसे दिखाना चाहिए एंगल. फॉर एग्जांपल इसको आप कहोगे एंगल A, then you can say angle A is equal to 56 degree. Why? They are corresponding angle. क्योंकि ये देखो, ये एंगल 56 है और ये भी 56 होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है. कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और पैरेलल के ऊपर, ये ए भी इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और इस पैरेलल लाइन के ऊपर. सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग. सो A is equal to 56 and A is equal to X. Why? यहां तो रीजन लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग और यहां पे लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. देयरफॉर x is equal to 56 डिग्री. समझ आया तनुजा? यस सर. Jira, are you able to understand? यस सर. This is very simple. This is about geometry. So x में आप लिखोगे 56 and then you do check and do the next question. अब x कितना होगा? बहुत सिंपल है सर 136. हाँ 136. क्यों 136 होगा? सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये इसके ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ये भी ऊपर है और लेफ्ट में. सो दे आर इक्वल. सो x विल बी 136. तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. अब x कितना होगा? अब तनुजा बताएगी. सर 131. नहीं सर. है? आराम से सोचना है. अगर ये 131 ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये वाला है.
एंगल ए। क्यों? क्योंकि ये आपका पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करो। सो एंगल ए, एक्चुअली या तो 1 2 3 लिख लेते हैं एंगल, या कैपिटल में लिखते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 131 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब x कितना होगा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक इसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन है। सो ये एंगल x और एंगल a, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या होती है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर एक स्टैंडिंग लाइन होगा तो जो दो एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस उनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle A, which is 131 degree, angle A plus x is equal to 180 degree. Angle A तो हमें पता चल गया 131 है, plus x is equal to 180. Therefore, x is equal to 180 minus 131, which is equal to 49. 49. सो हमें पता चल गया ये जो एंगल x है, दिस इज 49. क्लियर? तो हम यहाँ इसके जो तो यहाँ x में लिखेंगे 49. तो आपको जब भी ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, ये ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है। जब हम आगे हमने वो पैरेललोग्राम पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ ऐसे देखा, और इसमें अगर मैं लिखता हूं ए बी सी डी एंड देन आई ड्रॉ लाइक दिस शोज दे आर पैरेलल, एंड ऐसे भी ड्रॉ करता हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल। ये जो है BC, अभी मैं ये सिर्फ लाइन सेगमेंट बन रहा है। लाइन तो तब बनेगा जब ये मैं पूरा एक्सटेंड करूंगा। अगर मैंने सिर्फ B पे ही रखा तो वैसे तो ये लाइन सेगमेंट होगा, बट हम नॉर्मल जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम उसको लाइन ही बोलते हैं। अब ये जो B है, BC साइड है, ये AB, और अगर मैं AB और CD को एक्सटेंड करूं, इसको भी एक्सटेंड करूं, तो BC मेरा ट्रांसवर्सल बनेगा। देन आई कैन से दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दे आर को इंटीरियर। ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इनका ध्यान रखना है शेप्स का। सर पे ये हाँ, सर ये को एक्सटीरियर एंगल से भी हो सकता है। हाँ, को एक्सटीरियर हो सकता है, लेकिन को एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी क्या है? वो 180 के इक्वल होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। सो दिस एंड दिस, दे आर को एक्सटीरियर। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। यू कैन से x plus 131 is equal to 180, और ब्रैकेट में यू कैन राइट को एक्सटीरियर angles. Very good. Therefore, x is equal to 180 minus 131, which is equal to 49. तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये को एक्सटीरियर है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है और ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो ज्योमेट्री में आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द रूल्स मतलब थ्योरम्स। जो भी थ्योरम्स है कि सप्लीमेंट्री 180 होगा, को एक्सटीरियर 180 होगा,
कॉरस्पॉन्डिंग, इक्वल होंगे. इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स यू कैन प्रूव इट एनीवे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अब x फाइंड करना है. सर 122. 122. रीजन क्या होगा? सर अल्टरनेट एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, सो इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट. एंड इंटीरियर है एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं. एक्सटीरियर. एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर. नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर ही होते हैं. जो प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वो ये और ये हो सकता है. लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब ये, और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? ये. तो एक प्रकार से तो ये भी इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर ये आपस में इक्वल है तो ये तो सप्लीमेंट्री है. तो ये इनका सम 80 है और इनका भी सम 80 है. तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी, यू आर राइट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो है वो भी एक प्रकार से इक्वल होंगे. बट जो हमारी नॉर्मल थ्योरम है दैट इज ओनली रिगार्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो इसको हम लिखेंगे 122. ये अब तो ये बहुत इजी है. सर 50. रीजन? सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज आप सॉरी, ये जो एंगल की ये जो प्रॉपर्टी थी, ये कौन से इसमें था? 8.34. 8.34 कर लेना. ठीक है. ओके. ये क्योंकि ये दीजर ये आसान सी है, इनको फटाफट करना है, आगे चलते जाना है. हमें 8.41 करना है, सॉरी 8.4 करना है. ये वाला यहाँ तक है, दीज आर फॉर स्मॉलर क्लासेस अप टू 8. या ये आपको करनी है. पहले ये करते हैं 8.35. क्या टाइम हुआ है? 8. तो लेट्स डू 8 इक्वेशन विद एंगल्स. ये भी बहुत इजी है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? द एंगल मेजरमेंट इन द डायग्राम, एंगल मेजरमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब आपके पास देयर आर टू इक्वेशंस. एक इक्वेशन ये दिया है, एक इक्वेशन ये दिया है. ठीक है. तो थोड़ा छोटा करूं क्या? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर. Solve for x and then find the measurement of a. तो इसमें क्या बोला है? पहले आपको solve for x फाइंड करना है और उसके बाद फाइंड a. ठीक है ना, यही लिखा हुआ है ना. अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशंस देखें, दो इक्वेशंस क्या है आपके पास? How will you find x? There are two equations. You have to first find x. एंगल ए जो दिया हुआ है इसको आप देखो, ये यहाँ है. एंगल बी यहाँ दिया है. इनका कुछ आपस में रिलेशन दिख रहा है?
अभी अभी तनुजा ने बताया था। So alternate exterior angle लेके. हाँ, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. इफ दे आर इक्वल तो इनका ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी इक्वल होगा. दैट मीन्स you can say angle A is equal to angle B. क्या बोला था? alternate Exterior angle. alternate exterior angles. तो ये आपको रीजन हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए whenever you have to solve. अभी तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिखने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली अगर क्वेश्चन होगा. So when angle A is equal to B, that means इनका right side will be equal to right side. Therefore 10x plus 24 is equal to 6x plus 72. तो x क्या होगा? हमने सीखा है कि वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको एक साइड पे रखना चाहिए. सो 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 72 और ये कांस्टेंट प्लस 24 है, इसको यहां ले जाता हूं माइनस 24. तो दिस इज 4x इज इक्वल टू 12 and 48. Therefore x will be 48 divided by 4 is equal to 12. So x आपको मिल गया 12. Therefore x is equal to 12 डिग्री. जब x 12 होगा तो a आपको पता चल जाएगा what a कितना होगा, क्योंकि you have to find angle A. What will be angle A? शाबाश, कौन बताएगा? Ira, you tell me. How will you find? बताओ. Ira, are you there? Yes, sir. I'm not sure. Why? When you have found one variable, when variable मिल गया, इसको वापस किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, you will get A and B. When you are using these two equations, first आपने क्या किया? You have used this property, exterior angle. Exterior angles में जैसे तनुजा ने बोला A will be equal to B because of exterior alternate angles. Therefore, this part right hand side is also equal. If A and B are equal, then right part are equal. So हमने equation बनाई. From this equation we got x equal to how much? 12. 12. Now when you know value of variable, इसको इसमें substitute कर लो. You have to find A. I found it. Therefore 144. angle A is equal to 10 into 12. 12 plus Plus 24. 24. 120 plus 24 is 144. 144. ठीक है ना? Yes, sir. So it is just taxing. It is just an exercise for your brains. Keep on thinking. You are using algebra. You are using geometry. दोनों को यूज करना है. So angle A कितना आ गया? 144. Yes, sir. ऐसे ही अगेन अब A भी दिया हुआ है, B भी दिया है, अगेन टू इक्वेशंस दिया है. A और B इक्वल है. Why? The corresponding. Corresponding angle. Therefore इनका इक्वेशन का राइट साइड 5x minus 5 will be equal to 3x plus 13. उससे you find x and then substitute the value of x and then find B. Okay. So this is about 8.35.
इक्वेशन विद एंगल्स, ठीक है। उसके बाद यू शुड ट्राई दीज टू। 8.43 यूक्लिड्स ज्योमेट्री हम लास्ट में करेंगे। नाउ यू कैन डू 8.41 एंड 42। दे आर ऑल्सो सिमिलर एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा उसमें स्लाइट डिफिकल्टी बढ़ा दी है। फॉर एग्जाम्पल 8.41 देखें। एक मिनट, इसको ये क्या हो गया? अब कौन करेगा ट्राई? नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स। So what will be x? शाबाश शाबाश, सोचो। एक चीज आपको क्या चीज दिया हुआ है? जो ये जो स्क्वायर दिया है, ऐसा स्क्वायर। स्क्वायर मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट इज अ राइट एंगल। नाउ थिंक, मैंने हिंट भी दे दिया, ये 90 डिग्री है, तो यू हैव टू फाइंड एक्स। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। थिंक। तो जो भी आपने अभी हमने एक्सरसाइजेस की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, फिर पैरेलल लाइंस का, all those things you should try to use while solving any particular exercise. सर Shabash. x is 60 डिग्री। Why? सर एक तो हमें दिया हुआ है वो 90 डिग्री है, और जो 30 के अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट वो 30 डिग्री होगा, और फिर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा। Very good. So ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। फिर से ड्रॉ करता हूं, मेरा पेन हिल रहा है। और I can write CD is a straight line, EF is a straight line, and they intersect at point G. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? ये और ये। दैट मीन्स ये जो एंगल है, सपोज इसका मैंने नाम रखा है से 1, और ये तो 90 डिग्री है, ये तो दिख रहा है। देयरफॉर 90 प्लस 1 एंड प्लस x, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा। नाउ दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों सप्लीमेंट्री है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है and these are all standing lines meeting at this point. So in तीनों एंगल का जो सम होगा that will be 180 degree. So angle, this is your 90 degree. So 90 plus x plus 1, angle 1 is equal to 180 degree. 90 plus x प्लस, यहां ऊपर लिख सकते हो आप, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 1 जो है ये 30 के बराबर है। यहां ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर 90 प्लस x प्लस 1 अब इस इक्वेशन से पता चल गया, ये इक्वेशन A है, ये इक्वेशन B है। सो इक्वेशन A से पता चल रहा है कि एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री है। Therefore x किसके बराबर होगा? 180 minus 90
-30। इनको x को एक साइड पे रखना है इक्वेशन को, 90 और 30 को यहाँ ट्रांसपोज करना है। और जब आप इसको माइनस करोगे ये आपको मिलेगा 60। तो यहाँ पे आपने 60 लिखना है। तो लाइकवाइज यू शुड ट्राई। तो आप लोगों के लिए क्या प्रैक्टिस वर्क है या होमवर्क है? ट्राई दीज टू, 8.41 and 8.42. Okay, this is your homework. Try exercises try 8.41 and 8.42. ठीक है, चलो फिर। और कुछ पूछना है तो नहीं किसी ने? No, sir. चलो, ओके देन, बाय एंड गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night, sir. बाय।